کیا این سی کو لوگوں کا پیار اس طریقے سے مل پائے گا جس طریقے سے ماضی میں ملتا تھا؟ کیا نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ جیت درج کر پائیں گے؟ اس بار کا مقابلہ دیکھنے والا مقابلہ ہوگا اور اس بار کی ٹکر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر دیکھنے والی ہوگی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ہمارے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر سلمان ساگر جی جڑے ہیں، جو کہ حضرت بل کانسٹیٹوئنسی سے جو ہے وہ انتخابات کنٹیسٹ کرنے والے۔ اس بار کے انتخابات آپ کو یاد دلا دوں کہ 10 سال بعد ہو رہے ہیں اور لوگ بھی اپنا نمائندہ چننے کے لیے بے قرار بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کب ہمیں ووٹ ڈالنے کا موقع ملے اور ہم اپنا نمائندہ ریپریزنٹیٹیو چنیں۔ سب سے پہلے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، مبارکباد ہے، آپ حضرت بل سے جو ہے کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ سیدھا سوال رہے گا، اس بار کے جو انتخابات ہوتے ہیں کس طریقے کا مقابلہ آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ این سی جو ہے اتنا ایفرٹ نہیں لگانا پڑا، اس بار کیا لگانا پڑے گا؟ نہیں، کمپٹیشن ہمیشہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، تو کبھی کم تھوڑا سا، کبھی زیادہ، کبھی ویو، بٹ الیکشنز میں اگر آپ ایون چھوٹی سطح کا الیکشن دیکھیں گے، اگر ٹریڈ باڈی کا الیکشن ہوگا، ایسوسیشنز کا الیکشن ہوگا، کرکٹ ایسوسیشن کا الیکشن ہوگا، کسی بھی تو ایک کمپٹیشن رہتا ہے۔ تو جنرل الیکشنز کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ اسمبلی الیکشن ہے، اس میں ہمیشہ بہت زیادہ پارٹیسپیشن رہتا ہے، ہزاروں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، اوور آل لاکھوں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، تو کمپٹیشن ہمیشہ ہوتا ہے، آج بھی ہے کمپٹیشن، لیکن ہم اس چیز سے سیٹسفائڈ ہے کہ ہمارا جو الائنس ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الائنس جو ہے فار لارجر گڈ آف پیپل، اور انڈیا بلاک کا الائنس ہے، تو یہاں کے لوگوں نے دیکھا جو مخالف پارٹیاں ہماری ہے، جو ہمارے رائیولز ہیں، وہ بی جے پی کے الائنس رہے، اور انہوں نے آج بھی ایک سکوپ رکھا ہے بی جے پی سے الائنس کرنے کا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں ہم اگر جماعت نے ہمیں اپروچ کیا ہوتا تو ہم ان کے لیے سیٹ چھوڑتے۔ یہ اگر اور مگر میں انہوں نے سارا قصہ تمام کر دیا 2014 میں بھی، اور آج بھی اگر مگر میں ہی انہوں نے کانگریس کو بھی سائیڈ لائن کر دیا، اور سو کالڈ جو یہ باقی اتنے سلوگنز مار رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دے آر گوئنگ ٹو الائی ود بی جے پی ان کمنگ ٹائمز، اگر ان کو کوئی موقع ملا، لیکن اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ووٹ کریں گے انڈیا الائنس کو، اور نیشنل کانفرنس ایک بہت بڑی جیت کی اور بڑھ رہی ہے انشاءاللہ۔ پچھلے پارلیمنٹ الیکشن کی بات کریں جو اس بار حال ہی میں ہوا ہے، اس سے پہلے ایک پی ایچ ڈی کا نظام تھا اور پی ڈی پی نیشنل کانفرنس ہاتھ پکڑ کے چلتی تھی، تو جیسے جیسے انتخابات آتے گئے وہ ہاتھ بھی چھوٹتے گئے، وہ ساتھ بھی چھوٹتے گئے اور راستے بھی بدلتے گئے۔ آج تو صاف طور پر دکھ رہا ہے نیشنل کانفرنس جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، بی جے پی فی الحال کسی کا ہاتھ تھامنے سے ناکام ہے یا پھر منع کر رہی ہے۔ تو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں کس طریقے کی مشکلاتیں آ سکتی ہیں یا پھر کس طریقے کی رعایت مل سکتی ہے تمام لوگوں کو؟ دیکھیں، پی ایچ ڈی کا جہاں تک سوال ہے، اس کا ایک لارجر کاز تھا کہ ہم اپنی بات آگے تک پہنچا سکیں۔ بالکل، یہ بھی ہم کو پتا ہے کہ کون لوگ پی ایچ ڈی کو پہلے چھوڑ کے چلے گئے، کہ انہوں نے شروعات کی پی ایچ ڈی توڑنے کی، تو الٹیمیٹلی ایسی چیزیں ہو گئی، ہم نے ڈی ڈی سی الیکشن لڑا اور ہم نے ان کو ٹھیک ٹھاک اپنی سیٹس دے دی، اور انہوں نے لڑے اور انہوں نے چیئرمینز بنائے جہاں بنتا بھی نہیں تھا ان کا اس وقت، کیونکہ الائنس ان کا ریسنٹ ہوا تھا 2014 میں بی جے پی کے ساتھ۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے آج ہم مانتے ہیں کہ جب ہم انڈیا بلاک سے الائنس کرتے ہیں تو ہم بی جے پی کے خلاف الائنس کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں پی ایچ ڈی توڑنا ہوتا تو پی ایچ ڈی بنا ہی تھا بی جے پی کی پالیسیز کے اگینسٹ، جو 370 35A بی جے پی نے یہاں ختم کیا تو اس کے اگینسٹ بنا تھا بی جے پی کے اگینسٹ۔ تو آج ہم جب کانگریس کے ساتھ ہیں تو پی ایچ ڈی سم ہاؤ ون آن ادر وے انٹیکٹ ہے، لیکن جو اب باقی پارٹیاں جنہوں نے ابھی بی جے پی کے لیے سبھی ونڈوز کھول کے رکھی ہے، یہ ان کو سوال پوچھنا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو گئے ہیں، ہم نے کانگریس سے الائنس کیا ہوا ہے، اور کانگریس کے ساتھ بی جے پی کا کبھی الائنس نہیں ہو سکتا ہے، تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہمارا بی جے پی سے الائنس نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سوال آپ ان سے ضرور پوچھیے جنہوں نے اپنے کھڑکی دروازے کھلے رکھے ہیں بی جے پی سے الائنس کرنے کے لیے۔ سلمان جی، طنز بہت کستے ہیں آج کل سیاستدان ایک دوسرے پر، کہیں نہ کہیں پرسنل اٹیک تک بات پہنچ جاتی ہے، کہتے ہیں یہ سیاست جو ہے وہ پیڑھی در پیڑھی چلتی آتی ہے اور یہ خاندانی روایت ایک چلا رہے ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ میاں الطاف کے بیٹے مہر علی بھی جو ہیں، محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی بھی ہیں، اور احسان یوسف صاحب بھی ہیں، اور مختلف ایسے سیاستدان ہیں جو ایسے ہی کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیں، یہ پالیٹیشین کبھی مجھے نہیں لگتا اس کو آپ ڈائناسٹی کا نام، ڈیموکریسی اور ڈائناسٹی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہم ہر 5 سال بعد اگر نارمل کورس میں الیکشن ہو جاتے جیسے ملک میں ہوتے ہیں، ہر 5 سال بعد الیکشنز ہوتے ہیں۔ انفیکٹ اگر آپ دیکھیں گے ملکی سطح پہ راہل گاندھی جی ایک الیکشن ہار چکے ہیں 2014 میں، بالکل لوگوں نے نہیں پسند کیا، تو ڈائناسٹی ہے نہیں، لوگوں نے ان کا جو پریشرم بعد میں رہا، ان کی جو محنت بعد میں رہی، لوگوں نے پسند کیا، تو اٹ از آل اپ ٹو پیپل۔
तो वोट यहाँ डाल भी के चुने जाते हाँ 5 साल बाद हर दिन एग्जाम होता है आपका। डायनेस्टी अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में कहेंगे, अगर आप बिजनेस में कहेंगे, अगर आप बाकी चीजों में कहेंगे डायनेस्टी, अगर देखिए पॉलिटिक्स में डायनेस्टी नहीं हो सकती, लेकिन आप सर्विस में कहते हैं जी हमारी 7 पीढ़ियां आर्मी में काम कर रही है, हमारी 7 पीढ़ियां पुलिस में काम कर रही है, हमारा सर्विस टुवर्ड्स नेशन है, तो हमारा भी सर्विस टुवर्ड्स नेशन है, हमारा भी नेशन बिल्डिंग है। लेकिन आप इसको अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते तो ये आपके लिए एप्लीकेबल है। और अगर ये खानदानी सियासत कह सकते हैं आप, जिसको आप खानदानी सियासत कहते हैं, अगर ये खाली कश्मीर में होती तो हम कहते हैं हाँ ये बड़े सगीर में है। आप अमेरिका देख लीजिए, वो दुनिया की सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है, वहां भी क्लिंटन की फैमिलीज में या बुश फैमिलीज में आप देख लीजिए रिसेंट हिस्ट्री में, या कैनेडी फैमिलीज में रिसेंट हिस्ट्री में हमेशा सक्सेशन होता आया है। ऐसी कोई ये यहाँ कोई यूनिक सी बात नहीं जम्मू कश्मीर में। अच्छा मुल्क की सतह पे देख लीजिए या आप एशियन पॉलिटिक्स में देख लीजिए, तो ये है। लेकिन हमारे लोगों को क्या है कि उन्होंने पिन पॉइंट कश्मीर को लेके करना है, फिर आज जाके जम्मू कश्मीर में नेशनल काउंसिल टारगेट करना है। मैं नहीं समझता, ये लोगों की विल है, लोगों की स्वीट विल है, वो किसको रखे किसको नहीं रखे। अगर को मैं पसंद नहीं हूं मुझे वोट नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं काम कर रहा हूं 24 साल अपने लाइफ के मैंने किसी को दिए हैं, इट्स अप टू पीपल, लेट देम डिसाइड। अच्छा एक और सवाल रहेगा, बीजेपी के तरुण चुग जी कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर जो है यहाँ पर इख्तिलाफात पैदा करेगी और पिछले जैसे चलता था रिवाज, लोग मरते थे या फिर अस्करियत पसंद का दौर होता था, वही दौर वापस लाने की कोशिश कर रही है। वो चुग साहब को बोलना उनकी पॉलिटिक्स है, उनकी मजबूरी भी है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमारा अलायंस क्लियर है, हम लोगों की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस एक सेक्युलर अलायंस है, उनके साथ यहाँ की रीजनल पार्टीज का अलायंस होना चाहिए था। लोग बीजेपी के अलायंस के साथ नहीं है, या जिन्होंने अपने ऑप्शन अभी खुले रखे हैं। हमारा ऑप्शन बंद है, हमारा क्लोज्ड ऑप्शन है। कांग्रेस मीन्स कांग्रेस, कांग्रेस मीन्स इंडिया अलायंस। सो चुग साहब को बोलना, वो तो नेचुरली उनको जो कांग्रेस अच्छा बोलेगी उनको उसमें ही बुरा बोलना है, वो अलग बात है। वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो प्रिंट करके अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन उनकी मजबूरी है, हमें कोई गिला नहीं। कॉपी पेस्ट का क्या सिस्टम रहा है, आपने कुछ ऑब्जर्व किया? कॉपी पेस्ट का ये सिस्टम है, जो पार्टी पहले मैनिफेस्टो लाती है उसका कॉपी पेस्ट नहीं होता है, जो बाद में 3 दिन बाद या 6 दिन बाद लाती है तो वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ भी आपने देखा होगा, वी वर द फर्स्ट पार्टी जिन्होंने मैनिफेस्टो रिलीज किया, तो बाकियों ने फिर उसी को घुमा फिरा के उसी मैनिफेस्टो को समहो लाया। सो एक कॉपी पेस्ट का चक्कर स्टेट लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर भी चलता है। अच्छा सलमान जी, एज ए यूथ आप ज्यादा यूथ से जो है जुड़े हैं, यंग डायनेमिक लीडर हैं आप, ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा मगर इतना सुना है हमने, तो काफी नौजवानों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उठते हैं बैठते हैं, तो आज का कश्मीरी क्या चाहता है, एक नौजवान क्या चाहता है आज का कश्मीर? मैं समझता हूँ वो कम से कम अभी एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि इस बार उनके वोट के साथ धोखा ना हो। 2014 में लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, बिलखुसूस कश्मीर के लोगों ने वोट दिया पीडीपी को और उनको नंबर 1 पार्टी बनाया। 28 सीटें थी उनकी, लेकिन वो ये लोग कभी नहीं समझते थे या जानते थे कि ये जो वोट वो कलम दवात पे डाल रहे हैं, ये बीजेपी के कमल फूल पे दब रहा है। अच्छा। कुछ देर के बाद ही उनका जो कलम दवात को वोट था वो बीजेपी के पल्ले में पड़ गया। तो वो लोग नहीं चाहते होंगे, लोग चाहते होंगे वो ऐसा पार्टी को वोट दे, ट्रस्टवर्दी पार्टी को वोट दे जो उनके वोट की कदर करेगा, ना कि उनके वोट से बेईमानी होगी जो 2014 में हुई है। बिकॉज अल्टीमेटली यंगर जनरेशन वोट कर रही है और वोट वो किसी एक्सपेक्टेशन से कर रही है, वो अपने लीडर्स को ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्ट चाहेंगे। होपफुली इंशाल्लाह, वेरी वेरी होपफुल कि इस बार वोट नेशनल काउंसिल मिलेगा और इस अलायंस को मिलेगा जो लोगों की एस्पिरेशन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस लोगों की एस्पिरेशन है, मैं नहीं समझता इसमें कोई दो राय है जम्मू कश्मीर के लोगों को लेकर। अच्छा, आपने क्या ऑब्जर्व किया हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी में? लोगों से मिलते हैं, ज्यादा कैमरा के सामने नहीं आते हैं, दिखावा कम ही करते हैं, सुना है हमने, और ज्यादा आते भी नहीं है। तो ग्राउंड लेवल पे आप जाते हैं, ग्राउंड जीरो पे रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ऑब्जर्व क्या करते हैं, कमी किस चीज की रह गई है हजरतबल के लोगों के लिए और वहाँ की तामीर और तरक्की को लेकर? हजरतबल में बहुत से इश्यूज हैं, वहाँ काफी देर से, बहुत अरसे से डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुकी पड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खासतौर में मैं कहूँगा कि 2014 के इलेक्शंस अगर हम ले लेंगे इमीडिएटली, तो काफ़ी देर बाद हजरतबल असेंबली सेगमेंट का कोई मिनिस्टर बना था। ये बहुत 83 में मिनिस्टर बना था, 83 के बाद 2014 में बना था, तो कोई 25-30 साल के बाद वहाँ लोकल मिनिस्टर आया था उस सेगमेंट में। तो लेकिन उस सेगमेंट में भी कोई रिमार्केबल डेवलपमेंट के नाम पे आप नहीं बोल सकते कोई एक काम हुआ है।
वहाँ इवन एक डिस्पेंसरी नहीं बनी है, वर्किंग डिस्पेंसरी। वहाँ कोई कम्युनिटी सेंटर आप नहीं देखेंगे जो 2 करोड़ 3 करोड़ का बना है। तो ये एक हो गया कि अभी जो रिसेंटली मैंडेट दिया था 2014 में, उससे पहले भी कुछ शिकायतें यकीन रही है, जो पहले भी एमएलए थे और 2014 में हमने वो सीट हारी है। उसकी जरूर कोई वजह रही होगी, शायद आउटरीच नहीं था हमारे एमएलए का, जिसने 3 बार हारा होगा इलेक्शन। सो मैं उस डिटेल में डिमांड में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ लोगों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा और डेवलपमेंट की वहाँ बहुत ज़रूरत है। वहाँ लैंड के इश्यूज़ है, वहाँ रेवेन्यू के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। वहाँ बहुत सी जगहों पे ऐसे लोग हैं, सदपुरा है, हमची है, गणतल है, फकीर गुजरी के एरियाज है, जहाँ लोग 20-20, 30-30 साल से रह रहे हैं, उनको भी राइट्स नहीं है। गुजर तबका भी वहाँ आता है। गुजर तबके के साथ साथ और भी है, एक बहुत बड़ा तबका है गुजर तबका है, और भी है डिफरेंट इलाकों से लोग हैं जिनको अभी ये ना लैंड राइट्स नहीं मिले हैं, अपने हुकूक नहीं मिले। यस, फॉरेस्ट लैंड एक्ट के अंडर उनको अभी लैंड राइट्स नहीं मिले हैं। वो सबसे बड़ा मसला है, वहां के रिप्रेजेंटेटिव को वो आवाज उठानी है। मैं इस चीज से परेशान हूं कि पिछले 25-30 साल में ये बात किसी ने की ही नहीं, असेंबली छेड़ी नहीं होगी, छेड़ी ही नहीं है। तो ये जो मिनिस्टर बने हैं या एमएलए 3-3 बार बने, 3-3 इलेक्शन लड़े हैं लोगों ने, तो उन्होंने ये मसला रेज भी नहीं किया हुआ है। होपफुली इंशाल्लाह जो उनकी ये एक बड़ा इशू है, वहाँ बिजली का और पानी का बहुत शॉर्टेज है हजरत वली, जो मैंने देखा। होपफुली मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, अगर मुझे इलेक्ट करते हैं लोग, मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। बाकी लोगों का फैसला होता है, जैसे मैंने पहले कहा आपको। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं असेंबली में ये ऐसे इशू, लेन ड्रेन्स बनते रहते हैं, एमएलए हो या ना हो, 10 साल में लेन्स ड्रेन्स बने हैं, छोटे मोटे लोगों के काम होते हैं। बिजली लोगों का राइट है, वो एमएलए को फेवर नहीं करता। पानी भी जो लोगों का राइट है, एमएलए फेवर नहीं। अब तो इतनी फीस चढ़ाई है कि आप कम दे रहे हो, फीस ज्यादा भरते हो। लेकिन जो मेजर इश्यूज हैं लोगों के, वो देखने पड़ेंगे हमको। उसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ आपके माध्यम से, कि हम वो इश्यूज रेज करेंगे जो अभी तक रेज नहीं हुए हैं। एक और सवाल रहेगा, और जिस तरीके से इस बार मुकाबला हो रहा है, पीडीपी की भी एक कैंडिडेट बड़ी मजबूत है और आपका भी एक होल्ड बहुत अच्छा है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, तो क्या लगता है मुकाबला कहीं 8-9 का हो जाएगा? देख, मुकाबला, मैंने कहा मुकाबला हमेशा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट यस, नेशनल कॉन्फ्रेंस को यकीनन एज है इंशाल्लाह, क्योंकि लोग समझते हैं इस बार नेशनल को मौका देना चाहिए, तो उसका हमें जरूर फायदा होगा। और लोगों ने आजमाया है, जो 2014 के कैंडिडेट हैं, उनको लोग अभी भी लोगों से माफी नहीं मांगी उन्होंने। पीडीपी ने अभी भी उनकी कर रही है, मगर जब भी बात करते हैं ना जी, तो सवाल को या काट देते घुमा हैं। फिरा के आप उनको बोलते हैं जी हमने अलायंस किया तो 2 को मिलाने के लिए। अब माफी मांगो, गलती की आपने। आपके अलायंस की वजह से 370 खत्म हो गया, आपके अलायंस की वजह से बीजेपी पावर में आई यहाँ। आप एक बार माफी मांगो, देन लेट पीपल डिसाइड। मेरी जो कंटेंडर है वहां, जो पीडीपी की है, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू हर, विद ऑल रेस्पेक्ट टू हर, उनको माफी मांगनी चाहिए लोगों से। हाँ, हमने गलती की है, आप गलती मानिए। अब आप ऐसा कर रहे हैं कि आपने मर्डर भी किया है, उसके बाद आप घूम फिर रहे हैं और कहते हैं जी मैं ठीक हूँ। आपने गलती की है, उसकी सजा मिलनी चाहिए, और लोग वोट से सजा देंगे, मुझे इसका पूरा यकीन है। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तमाम जितने भी हजरत बल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है या फिर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ चाहने वाले, उन तक क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप हमें वोट देंगे। आपने 2014 में देखा आपके वोट के साथ कितनी नाइंसाफी हुई है। हजरत बल के लोगों ने भी वोट डाला था, उन्होंने उस वक्त पीडीपी को वोट दिया, और अनफॉर्चुनेटली पीडीपी के कैंडिडेट ने अपने वोट के पावर से, जो उसके एमएलए के पास होती है, 15 एमएलसी बनाए बीजेपी के, उनको वोट देके 2 राज्यसभा के एमपी भेजे, और जितने भी डिसीजंस हो गए तो वो उसमें पीडीपी के एमएलए का हाथ था। जो वोट कलम दवात को पड़ा वो बीजेपी को मिला। मुझे पूरा यकीन है कि उसका जो खमियाजा भुगतना, उसकी जो सजा है वो लोग उनको देंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि कांग्रेस की अलाय है, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पर हमें मौका देंगे, और जो लोगों की एस्पिरेशंस है सेक्युलर अलायंस की, वो मजबूत रहेगी और कामयाब होगी। और जिनने दरवाजे खुले रखे बीजेपी के लिए, उनको वो मौका नहीं मिलेगा अलायंस करने का। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो फिलहाल के तौर पर इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर चल रही हैं। हर वो मुमकिन कोशिश की जा रही है सियासतदानों द्वारा कि लोग जो है सेटिस्फाइड हो जाएं, खुश हो जाएं, और हमें अपना नुमाइंदा चुने। अब वक्त ही डिसाइड करेगा कि कौन किसको चुनता है, किस तरीके से लोग जो है बढ़ावा देते हैं, किससे अपना सरबराह बनाते हैं। फिलहाल के तौर पर जुड़े रहिए द टाइपराइटर के साथ।